Welcome all of you in Gyan Vavidya channel. Today my topic is an ode which is prescribed in first year, second year and third year. So, history terms and literary terms. In the history term, Elizabethan and neoclassical age is prescribed in the first year passage. Romantic and pre-romantic is prescribed in second year course, and third year romantic, pre-romantic second year, Elizabethan and neoclassical first year, and third year के अंदर और भी टॉपिक है, देख लेना कौन सा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा लाइन में. तो that is our, it is a history term, it is a literary term here, not a Elizabethan and new classical age, not a romantic and pre-romantic period. Today our topic is an ode. An ode is a literary term. An ode is a literary term. It is form of literature. It is form of literature. It is form of literature. An ode word is derived from Greek language. What is the meaning of an ode? An ode, a person expresses his deep feeling. His deep feeling. It is a long poem. It is a kind of long poem. A person expresses his deep feeling for a animal, for a thing, or any other things. He glorifies his opinion and experience for such person. It is called an ode. An ode is a literary term. It is form of literature. Basically, ode is three kinds of it. Ode is three kinds of it. In first type, पिंडारिक ode. आपने नाम सुना होगा पिंडारिक. ही इसका मेन था, सबसे ओल्ड पिंडारिक ode. और एक है हॉरिसियन. आई थिंक हॉरिसियन odd, and third is irregular odd. Irregular odd. तो इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग पोइम है. इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने जो फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग है, उसको एक व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है. तो ये मेनली तीन प्रकार की होती है, पिंडारिक और हॉरिशन या इर्रेगुलर. तो ये तीन प्रकार का जो पहला जो प्रकार है पिंडारिक, ये ग्रीक पोइट ने इसका यूज किया था. द ग्रीक पोइट, मेनली द ग्रीक पोइट यूज इट टू शो इट एंड सिंग्स ए सॉन्ग इन ए चोरस सॉन्ग. समूह में गीत गाते थे इन द पिंडारिक. आपने नाम सुना होगा थॉमस ग्रे का. थॉमस ग्रे की एक कविता है, उसका नाम है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी. थॉमस ग्रे ने क्या किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी. द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी. इट इज ए काइंड ऑफ पिंडारिक ode. Pindaric is the oldest ode in English literature, but it was not popular that time. Many romantic poets like as Keats, Shelley, H.T. Coleridge, William Wordsworth, they all are romantic poets in English literature. They all are English literature romantic poets. They followed irregular ode, which was the mixture of Horatian and Greek both.
इनके अंदर दोनों में क्या था, इन दोनों का मिक्सचर था। और जो अंग्रेजी के जो कवि मैंने आपको बताए थे रोमांटिक एज के, उन कवियों ने इरेगुलर ओड का क्या किया, प्रयोग किया। तो इस पिंडारी ओड को उसने 3 भागों में बांटा था। अब वो 3 भाग कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक भाग उसने लिया था स्ट्रोफी, एक भाग लिया था स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपियोड, EPODE, एपियोड। तो इसने 3 प्रकार का स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपियोड ये फॉलो किया था। और इसकी जो थॉमस क्रे का मैंने भी नाम बताया था, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, एंड विलियम कॉलिंस की एक पोएम है ऑड टू इवनिंग, which is good example of Pindari chord. We can say that William Collins' Ode to Evening, which is prescribed in the 2nd year, and the Progress of Poesy is good example of Pindari. In the Horatian Ode, it was followed by Latin writer. It was the Greek writer, and it was followed by the Latin writer. In this Horatian ode, the ode was divided into 4 lines and concluding couplet. Every 4 lines we can say a quatrains, and ending couplet was, every 2 line was couplet. But romantic poet like as William Wordsworth, Shelley, Keats, we can say that William Keats, John Keats, not William Keats, John Keats followed an ode very like. Ode to Nightingale is good example of it, which was composed in 1819. Do you know who is John Keats? John Keats was very popular writer in English literature. He passed away only for 25 years old. He was born on 1795 and passed away 1821. 25 years old only. But he was greatest and popular writer in English literature. Ode to Nightingale is good example of it. Ode to Nightingale को आप इंग्लिश लिटरेचर में ले लो तो बहुत ही पॉपुलर ओड है कीट्स का। क्या नाम बताया था मैंने अभी आपको? ऑड टू नाइटिंगेल। ऑड टू नाइटिंगेल, और ये आपके कोर्स के अंदर है 2nd ईयर के अंदर, वही में अभी भी है MDS यूनिवर्सिटी के अंदर और जगत गुरु यूनिवर्सिटी के अंदर और NGS यूनिवर्सिटी के अंदर 2nd ईयर में जाकर देख लेना। ऑड टू नाइटिंगेल, और ये कब कंपोज की गई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ के 1819 के अंदर कंपोज की गई थी, क्योंकि 1821 के अंदर तो ये एक्सपायरी हो गया था। तो इसने इसके अंदर 80 लाइन, एवरी इसकी राइम स्कीम भी इसने दी थी, ABAB CDE CDE, ये 10 लाइनें हो गई। तो 10 लाइनों की एवरी लाइन हैज 10 लाइन and 8 स्टेंजा, and Ode to Nightingale was composed in 1819 और वो एक पॉपुलर ओड बन गया इंग्लिश लिटरेचर। कौन सा? ऑड टू नाइटिंगेल। तो मैंने आपको क्या बताया था? पिंडारी ओड, हॉरेसियन ओड और इरेगुलर ओड। और इसका एग्जांपल बीच में क्यों देने लगा? क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो ओड है ना, कीट्स के द्वारा ही फॉलो किया गया था, और कीट्स ने अपने कई कविताओं के अंदर ओड लिखे हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। 2-4 मेरे को भी लर्न है तो मैं आपको बता देता हूँ मौखिक, अदरवाइज यू कैन कंसल्ट इन योर नोटबुक एंड बुक, देख लेना अपनी किताब में क्या रखा है। बाकी मैं 2-4 जो ओड हैं उनके नाम बता देता हूँ। फेमस ओड
तो किड्स का ought to night angle, ought to night angle, ought to solute, ought to Grecian urn, ought to Grecian urn, ought to melancholy, ought to melancholy, ought to Grecian urn, ought to solute, ought to night angle, or so many, ought to psyche, ought to psyche, ought to psyche, ought to melancholy, ought to Grecian urn, ought to solute, ought to night angle। मतलब किड्स ने 25 साल के अंदर इतने ओड लिख दिए और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इतना फेमस हो गया। तो इरेगुलर ओड के अंदर ना तो कोई राइम स्कीम थी, ना कोई पैटर्न था, ना कोई पिंडारिक और होरेशियन का टाइप का था। उन्होंने ओड लिख दिया और वो क्या बन गए, फेमस बन गए। आपने नाम सुना होगा पीबी शैली, ये भी आपके कोर्स में है, पीबी शैली विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड ईयर। और दोनों पोएम में जो नाम लिख रहा हूँ, दोनों ओड आपके सेकेंड ईयर के अंदर है। आप देखो टेक्स्ट के अंदर एक है पीबी शैली। एक बार तो ये भी पूछा गया व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीबी शैली। पीबी शैली का पूरा नाम क्या है? पर्सी बाइसी शैली, पर्सी बाइसी शैली, पर्सी बाइसी शैली, पर्सी बाइसी शैली इसका पूरा नाम है। और पर्सी बाइसी शैली, मुझे दो ओड याद है, मैं बता देता हूं अभी आपको। एक तो है ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड। और एक है ओड टू वेस्ट विंड, एक ओड टू विंड, ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड हो गया। ओड टू स्काईलार्क, ओड टू स्काईलार्क, odd to skylark and odd to the west wind, which is prescribed pigby shelley. It is most popular odd in English literature, and Keats wrote mainly 5 and 6 odd in English literature. Thomas Gray ought to progress, ought to progress, odd. Kolinsky ought to evening, Kolinsky ought to evening, Collins ought to evening। और ग्रे की प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ग्रे की क्या है? थॉमस ग्रे की आपकी पोएम है सर फर्स्ट सेकेंड ईयर में, एन एलेगी ऑन ए रिटन कंट्री चर्चयार्ड, और वही राइटर है थॉमस ग्रे का ओड टू प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, POESY। तो थॉमस ग्रे का ओड टू प्रोग्रेस पोएजी, कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, कीट्स का ओड टू नाइट एंगल, ओड टू सोल्यूट, ओड टू ग्रेसियन, ओड टू मेलंकोली, ओड टू साइक, और पीबी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड और ओड टू द स्काईलार्क, which is good example in English literature। एस.टी. कॉलरिज में लिखा है और बहुत से कवियों ने लिखा है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको ओड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले ओड क्या होता है? एक प्रकार का ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है और ये एक लंबी कविता होती है। इसमें एक सच पर्सन अपनी डीप फीलिंग को ग्लोरीफाई करता है फॉर ए थिंग्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स, और इट इज ए लिटरेरी डिवाइस, इट इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर।
Odd is normally three kinds of it: pindaric odd and Horius, and irregular odd creates a main odd point in English literature. Keats wrote mainly 5 odd in English literature. P.P. Shelley, that is 2 sonnet, is very popular in English literature. Thomas Gray and Collins is also wrote odd in English literature. So odd is very important and significant topic in English literature. अब इसका एक दूसरा टॉपिक और बता देता हूँ कि सर लिटरेचर में आपने ऑड बताया, कल आपने हमें सोनेट के बारे में बताया था, सर एलेजी क्या होता है? तो एक टॉपिक में थोड़ा सा संक्षिप्त में और ले लेता हूँ। एलेजी एल्यूज इसका सही उच्चारण एल्यूजी बोलते हैं, लेकिन एलेजी बोलते हैं अपन एल्यूजी। तो ये एक प्रकार का एलेजी का मतलब होता है शोक गीत। इट इज ए सैड सॉन्ग, it is also literary divide, it is also form of literature, and elegy is a sad song, and a person expresses his deep feelings for his friends and other relatives, and he lamentation, and he weeps for such person. That is the elegy. एलेगी क्या होता है? एक प्रकार का शोक गीत होता है जो किसी के मृत्यु पर गाया जाता है। तो अंग्रेजी के अंदर एलेगी बहुत सी फेमस एलेगी है, इसमें थॉमस ग्रे का नाम सबसे टॉप पे आता है। थॉमस ग्रे, बिकॉज इट वाज नॉट पॉपुलर इन 16th and 18th century, when Thomas Gray followed it, it became very popular in English literature. तो थॉमस ग्रे की एक कविता थी, उसका नाम था एन एलेगी ऑन ए रिटन कंट्री चर्च। देखिए एलेगी के ऊपर थोड़ा सा अपन फोकस कर लेते हैं। लिटरेचर के ऊपर थोड़ा टॉपिक लिखना अपने में एक साहित्यिक कृति होती है, तो इसमें जितना जो नॉलेज आपने गेन किया है ना, उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। पोइमों के आधार पर जितनी आपने पढ़ी, जितने अंग्रेजी की कवि की प्रसिद्ध ऑड है, एलेगी है, सटायर है, सोनेट है, वो आपको लर्न होनी चाहिए। फिर उसको अपने को क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है कि भाई ऑड के बारे में आपको क्या नॉलेज है, तो वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। एलेगी क्या है? एक प्रकार का इट इज ए काइंड ऑफ सैड सॉन्ग। इट इज ए लिटरेरी डिवाइस। It is form of literature. Okay. So who is a main poet in English literature? Thomas Gray. ग्रे की एक पोइम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम, ग्रेस पोइम एंड रिटन ऑन ए कंट्री चर्च यार्ड। एंड एलेगी रिटन ऑन ए कंट्री चर्च। अब कोई कहते हैं एक होता है पास्टोरल एलेजी, नाम सुना होगा पास्टोरल एलेजी, जिसके अंदर ग्रामीण क्या होता है, एक सिपरड गंडरिया है, he weeps for his friend who has expired and he weeps for him, it is called a pastoral elegy। आपने नाम सुना होगा मिल्टन का लिसिडस, इसका गुड एग्जांपल है मिल्टन्स लिसिडस। अब मिल्टन ने अपने दोस्त रॉबर्ट किंग के ऊपर लिखी मिल्टन लिसिडस, which is written on the death of रिचर्ड जॉनसन या रिचर्ड किंग। एक आपके एन एलेगी रिटन ऑन ए कंट्री चर्च यार्ड, एक हो गई आपका मिल्टन की लिसिडस, एक पीपी सेली की एडोनिस, नाम सुना होगा, पीपी सेली भी नाम बताया था मैंने आपको, पीपी सेली एडोनिस। एडोनिस उसने किसके ऊपर लिखी? कीट्स की मृत्यु पर लिखी। कीट्स मरा था ना 1821 के अंदर, मैंने आपको बताया था ना, he was only 25 year old in English literature, however he became very popular। तो एडोनिस is one of them, which is written by P.P. Shelley।
which is an elegy on the death of जॉन कीट्स। तो एडोनिस जो है वो जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था। जॉन तो जॉन कीट्स की मृत्यु पर एडोनिस लिखा गया था। मिल्टन ने लिसिडस लिखा है ना। एक आपने नाम सुना होगा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उसका इन मेमोरियम which is also good example of an elegy। in memoriam in the death of Arthur Hallam, and this elegy written by Alfred Lord टेनिसन के द्वारा की गई। तो टेनिसन की इन मेमोरियम, और टेनिसन की एक फाइनल में पोएम भी चलती है, आप अभी देख लो बोलिए। फाइनल के अंदर पहली पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, which is written by Alfred Lord Tennyson, and in this break break poem the poet expresses his feeling and sorrow on the death of his friend Arthur Hallam. He weeps for him. It is a kind of elegy, which is good example of elegy, which is prescribed in the third year course first poem। आपने फर्स्ट ईयर की पोएम पढ़ी होगी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये कविता आपके इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रेक 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 which is taken from the memoriam to first an elegy written on a country church, second pastoral elegy मिल्टन की लिसिडस, थर्ड है पीपी सेली की एडोनिस, और लॉर्ड टेनिसन की आपकी ब्रेक 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 या इन मेमोरियम। ये जो मैंने आपको एडोनिस का उदाहरण लिया और उसका उदाहरण लिया, और भी कोई कवि है इनको देख लेना, मेरे को ध्यान में नहीं आता कौन सी कवि की है, तो बुक से और देख लेना। ये अंग्रेजी के लिसिडस वाला है, और एडोनिस वाला है, मेमोरियम वाला है, एलेगी रिटन ऑन ए कंट्री चर्चयार्ड वाला है। एक और है मुझे याद है W.B. इट्स की है, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई इन द मेमोरी ऑफ W.B. इट्स, इन द मेमोरी ऑफ W.B. इट्स ये कविता है, और ये ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। तो ऑडेन की ये उसके फ्रेंड W.B. इट्स के ऊपर लिखी गई इन द मेमोरी ऑफ W.B. इट्स। इट इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड ईयर कोर्स, है ना। ये जितने मैंने आपको पोएम बताई थी, ये सारी की सारी पोएमें आपके इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों के अंदर है। तो लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक, एंड यू शुड लर्न इट, एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लिटरेचर व्हिच इज यूज्ड इन इंग्लिश पोएम, or we can make our language impressive and attractive by using literature and history. Okay, thank you everybody. See you again tomorrow, and next day I will tell you next topic. Okay, see you.